I mean, this session has nothing to do with us giving you something or us teaching you something that we've not already taught you. Okay. I mean, this is us just putting you in a Zen mode, okay, in a monk mode, and also wishing you luck. Okay. The only tip that the board says is that there are no tips. We can't teach you something new in the last 2 days that we haven't taught you in the past few 8-10 months. Okay, so the only tip is that there are no tips, there are no tricks, there are no strategies left anymore. जो पढ़ाना था पढ़ा चुके हैं. Okay, we have given you the recipes, we've taught you how to cook. Cooking आपको करनी है. Okay, that is all there is. Okay, the only mindset that you must have while attempting the paper, okay, it's a big thing. Okay, kindly don't be too confident or too underconfident. Kindly separate your future self from the current self. Okay, 2 क्वेश्चन करके प्लीज अपने आप को IIM में ऑलरेडी मत देखने लगना, या 2 क्वेश्चन करके काइंडली ये मत सोचने लगना कि अभी डांट से कैसे बचे. Okay, those 2 questions will not, okay, decide your future, but those 2 questions will decide your mood for the rest of the paper. Okay, so kindly don't get distracted, don't get too demotivated or motivated, too confident for the entire paper. Be kindly consistent and throughout be confident, consistently confident throughout the paper. Okay, a basic checklist is आपका, selection होना चाहिए. Okay, I hope you've done that. Strategic selection. Okay, your concepts are clear. Okay, now there's no time to learn new concepts, and concepts you either know them or you don't know them. Okay, that is it. Okay, and I hope you've built a stamina. 2 घंटे का टेस्ट टेकिंग का स्टैमिना बिल्ड किया है अब तक, right? For 2 hours you need to build a stamina that for those 2 hours your brain is working in an optimal level. Okay, it doesn't go down. Okay, the energy does not drain, you don't get too distracted. Okay, that is it. Okay, any other specific concerns you have regarding verbal section? Because before I pass to the quant mentors, see, I am the good cop, so the only advice I have is chill. At these, actually, please close your books and keep them away. Nothing, you won't be changing your life in the past 2 days. The only thing that will change your life is maybe taking a chill pill. So kindly do that. Okay, there is no one universal test prep plan. Okay, एक महीने में ये करो इतना percentile पक्का. There is no one fixed strategy कि ये करो तो पक्का ही है. There is no one way to get a score. Okay, the only way is know thyself. Know yourself. Know your strengths. Know your weaknesses. Know what to attempt. Know what to skip. Kindly do not function as per your ego. Function as per your competency. That is it. Okay, I'm not giving you too much gyan. Okay, no specific questions, so I will just pass the mic to the bad cops now. Okay, they will be doing the scaring part. Okay, I won't be doing that. अगे मेरी तो पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करता इसके रे. ठीक है. सो सिंस आई हैव बीन मेंटर जो कैट इंडस्ट्री में recently आया and he got his first success sort of. तो I had a lot to speak, but you know what, शायद तुम लोगों के साथ मैं भी जाने वाला हूँ एग्जाम देने, and even I can feel that nervousness एक बार सक्सेस लाने के बाद भी. और probably ये मेरे साथ नहीं हुआ, ये सबके साथ होता है, क्योंकि with each exam there's one thing associated, that is 2 hours, right? तो सिर्फ 2 घंटा है, तो तुमने इतनी साल या इतनी टाइम पीरियड में जो मेहनत करी है वो 2 घंटे के ऊपर डिपेंड करता है. वो 2 घंटा अगर तुम लोगों का बहुत अच्छा जाता है, इट विल बी वेरी गुड. 2 घंटा अगर नहीं अच्छा जाएगा, अगेन दैट वुड बी अ बिट, हो सकता है तुम लोगों को सैड लगे, कुछ लगे, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जाम्स दैट आर कमिंग. तो प्लीज डोंट लेट दैट अफेक्ट यू, राइट? अपने 2 घंटे को पूरे प्रिपरेशन 1 साल की जर्नी पर हावी मत होने देना. पहली चीज़ तो ये व्हाट आई हैव लर्न. नाउ यस, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शायद मैं अगर तुम लोगों को बोलूँ जो मैंने करी थी, या
शायद तुम लोग भी कर सकते हो, which was, so while I started, like my last year my cat was in the first slot, right? And trust me, उसके 1-2 हफ्ते पहले तक तो मैं हो गया था कि यार देखेंगे अब जो होगा, ठीक है, अब क्या करना है, हाँ, अब क्या ही किया जा सकता है, जो होना था वो कर लिया। एंड आई हैड डन फेयरली, ठीक है, आई वॉज ओके विद दिस। सो अच्छी चीज़ ये हुई थी कि सिंस मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा लोड नहीं था, मेरे को जो नींद आई थी उस रात, मेरे को तो ये डर था कि मैं सुबह उठ जाऊं बस, ठीक है, और ऐसी नींद आई होप तुम लोगों को आए। ट्रस्ट मी, अगर फर्स्ट स्लॉट है तुम लोगों का, टेक अ गुड नाइट स्लीप, दैट वुड बी फॉर द फर्स्ट स्लॉट पीपल। फॉर सेकेंड एंड थर्ड स्लॉट पीपल, आई होप यू आर मैनेजिंग योर थिंग्स करेक्टली। आप लोग अपना जो स्लीप स्केड्यूल है वो सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो। ट्रस्ट मी, छोटी छोटी चीज़ें, दे आर इम्पॉर्टेंट। Okay, so if you are not managing your sleep, your food habits, that is not going to help you. तो एक लास्ट वीक या एक लास्ट के 2-3 दिन प्लीज़ अपनी स्लीप साइकिल, अपना मोबाइल फ़ोन, अपने एंग्जाइटीज़, अपनी सारी चीज़ों को अलग हटा के रखना। अच्छे से सो, बढ़िया आनंद से ढंग का खाना खाओ, हेल्दी फूड खाना। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि गो विथ फ्रूट्स, दैट्स द बेस्ट वे टू गो। सेकेंड, जब तुम लोग एग्ज़ाम देने जाओगे, जब तुम लोग सीट पे बैठोगे, तो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ मिनट्स, लाइक ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का प्रोसीजर रहता है, 30-45 मिनट्स का प्रोसीजर रहता है जब आप लोग आइडल बैठते हैं और तुम लोग अपने जैसे चेहरे इधर उधर देख रहे हो। मैं तुम्हारे चेहरे देख के नर्वस फील कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो तुम लोग इधर उधर देखोगे तो अच्छा है, इसकी भी, ये भी, इसका ये भी बेचारा परेशान है, ये भी परेशान है, हम लोग का क्या होगा। और कुछ लोग होंगे जो एकदम ओवर स्मार्ट होंगे, अरे हाँ हाँ ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया। इधर उधर देखोगे, बर्बाद, ठीक है। सिर्फ अपनी स्क्रीन पे देखना और प्रोबेबली टेक वाटर बॉटल। वाटर बॉटल तुम लोगों को ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाना पड़ता है ना। कोई भी वाटर बॉटल स्टील वाली मत लेके जाना, नुकसान होगा, ठीक है, बॉटल का भी, ठीक है। तो डेफिनेटली ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, थोड़ा सा पानी पी लेना, और जस्ट एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले, नहीं, जस्ट एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले वॉशरूम चले जाना, आए ना आए चले जाना, ठीक है। तो दैट वुड बी वन थिंग। नेक्स्ट, तुम लोगों का जैसे ही एग्ज़ाम चालू होता है, यू विल गेट दी स्क्रीन जहाँ पर वर्बल चालू होगा। नाउ एज द मैम करेक्टली स्टेटेड, फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस विल नॉट डिसाइड एनीथिंग, इट विल जस्ट डिसाइड द मूड, है ना। तो तुम्हारे जो फर्स्ट कुछ क्वेश्चंस होंगे वो तुम्हारा मूड डेफिनेटली सेट कर देंगे। आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि सिंस इट वुड बी वर्बल, आपको आरसीज देखने को मिलेंगे। यू कैन ऑलवेज ओपन दैट क्वेश्चन पेपर वाला चीज़, है ना, क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली ओपन करा, फटाफट से आरसीज स्क्रॉल करे, देखा कौन सा आरसी जो है वो कौन सा टॉपिक है जो तुम्हारा फेवरेट है। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट टू गो विद दैट, ठीक है। जो तुम्हारा फेवरेट आरसी है, जो तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है, I would suggest to go with that. Again, you can always think about your strategies जो तुमने अभी तक प्लान कर रखी है, ठीक है। जो तुम्हें नेचुरली अच्छा लगता है पढ़ने में, वो पढ़ने का, एंड देन स्टार्ट विद द पेपर, ठीक है। एक चीज़ जो हम लोगों ने तुम लोगों को बार बार बोली है, बार बार, कि इट इज़ नॉट द एग्जाम ऑफ अटेम्प्टिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, इट इज़ एन एग्जाम ऑफ अटेम्प्टिंग द राइट questions or coming to the right answers, right? It is more of accuracy rather than having a good lot of marks. तुम लोगों को ऑलरेडी कट ऑफ्स मालूम है, तो आई वोंट गो विद दैट। तो प्लीज़ आप लोग जो भी अटेम्प्ट करो वो ट्राई करना कि एक्यूरेसी के साथ कर रहे हो, ठीक है। दैट वुड बी वन थिंग। नेक्स्ट, आरसी के बाद, अच्छा, एक और सजेशन दे रहा हूँ जो तुम्हारे साथ होने वाला है। तो लास्ट जैसी आरसी तुम टाइम देखते रहना, आरसी में जब तुम लोग को कंप्लीट होगा एंड यू विल बी, आई गेस, वर्बल एबिलिटी के सेक्शन पर होंगे तुम लोग, और तुम्हारे पास लास्ट में शायद 1 मिनट या जब आधा सेकंड बचा होगा ना, और तुम एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करो, अगर तुम्हारे पास लास्ट के सिर्फ 1 मिनट या 45 सेकेंड्स बाकी हैं, तो रेदर देन सॉल्विंग अनदर क्वेश्चन, आई वुड सजेस्ट जस्ट रिलैक्स, है ना। वहाँ पर उस वक्त शांत हो जाना, 40 सेकेंड वापस से बैठना, अपने DILR की स्क्रीन का वेट करना, पानी पीना, और DILR बहुत ही फ्रेश तरीके से स्टार्ट करना। दैट वर्क्स, दैट हेल्प्स, ट्रस्ट मी। मतलब अगर तुम लोग अपनी तेज हार्ट बीट के साथ एकदम से DILR में पुश कर जाओगे, तो DILR का जो 1-2 मिनट है वो तुम्हें सेटल डाउन होने में लगेगा। सो व्हाट यू विल डू इज 30 सेकेंड्स पहले, जस्ट DILR स्टार्ट होने के 30 या 45 या 1 मिनट पहले
डू नॉट अटेम्प्ट. प्रॉबेबली अगर अटेम्प्ट करना भी है तो रिलैक्स मोड पे जो वो टीटा वाले हैं उनको 1 2 3 4 4 3 2 1 कुछ तो भी अटेम्प्ट करने का है, वो तो करना ही है. ठीक है, यू विल डू दैट. यू विल मूव टू DILR. DILR में यू विल बी चिल. ठीक है, वापस से वही क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करा. यू विल सी कि कौन सा सेट है. तुम लोग सेट देखोगे, तुम लोग डिसाइड करोगे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, जैसा भी रहेगा. एंड देन ऑफ कोर्स यू विल बी मूविंग टू दोज क्वेश्चंस. पहला सेट ट्राई करना. अच्छा टाइम देखे कि अच्छा टाइम बोले तो आप पता नहीं बट बोले कि सर हमने अच्छा टाइम दिया था, 40 मिनट दिए थे उसके लिए. ठीक है, अच्छा टाइम से मेरा मतलब है यू नो कि हाँ यहाँ पर आके मुझसे हो रहा है, नहीं हो रहा है. ठीक है, नहीं होता है तो नर्वस मत हो जाना. प्रॉबेबली सेकंड सेट पे मूव कर जाना इज बेटर. ठीक है, हम लोगों को लगता है, आई डोंट नो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, भूल गया, लेकिन ऐसा कुछ रहता है कि व्हेन यू हैव इन्वेस्टेड सम मनी इनटू सम टाइम इनटू समथिंग, यू फील कि यार मैं इस पे ही रहता हूँ, मैं दूसरे पे नहीं जाता हूँ. पर अगर तुमने वो जो टाइम इन्वेस्ट करा है उस पर तुम्हें पता पड़ता है कि यार नहीं, दिस इज नॉट वर्थ इट, मूव टू द नेक्स्ट. प्रॉबेबली वो शायद हेल्पफुल हो सकता है. दैट वुड बी समथिंग. नाउ DILR इज वन जो मैं, बिकॉज मैं भी लॉजिकल रीजनिंग का मेंटर हूँ, तो फिर मुझे हमेशा लगता है कि लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा सा टफ जाता है, थोड़ा मूड सेट कर देता है. बट अगेन वहाँ वो अगर अच्छा जाता है ना तो मज़ा भी बहुत आता है, क्योंकि मैथ्स में तुम्हारा मूड सेट हो जाता है. ठीक है, अगेन आई विल सजेस्ट द सेम थिंग. लास्ट 30 seconds या 45 seconds में इफ़ यू हैव सम आंसर्स टू मार्क, जस्ट मार्क देम कामली. डोंट थिंक अबाउट गोइंग टू न्यू सेट और डूइंग समथिंग. लास्ट के 45 सेकेंड, 1 मिनट को काउंट ही मत करना अपने पेपर में. अपना पेपर मान के चलना 39 मिनट्स का. काम करना, फिर से थोड़ा सा पानी पीना, मूव टू दी क्वांट. क्वांट में 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, तुम्हें 22 नहीं करना है. हाँ, तुमसे जितने बनेंगे. ठीक है, जस्ट बी एक्यूरेट. और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं. गो थ्रू अगेन दी क्वेश्चंस. सी तुम लोगों की स्ट्रेंथ तुम्हें नेचुरली मालूम होगी. देख लेना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूला से हो जाते हैं. ठीक है, फॉर्मूला, लॉजिक, जो लगता हो, है ना, सान बान धन भेद. ठीक है, जो भी है. सो यू गो विथ ऑल दोज थिंग्स विच यू हैव. Try to bring on the good answer, probably the correct answers. You don't have to go 10 attempt, 20 attempt, कुछ भी नहीं करना. Accurate attempts, that's the key. Trust me on this, है ना. 45 मार्क भी आ गए तो फिर अच्छा स्कोर होता है अगर टफ पेपर होता है. लास्ट ईयर सबको लग रहा था कि अरे यार पेपर बहुत बिगड़ गया, पेपर बहुत बिगड़ गया, सबका बिगड़ गया था जब नीचे आए तो. ठीक है, सो यू नेवर नो, यू जस्ट फोकस ऑन योर पेपर. एंड आई गेस दैट वुड बी माई टिप टू यू, राइट. दूसरा लास्ट एंड 2 घंटे के बाद चल. आई गेस 2 घंटे के बाद चल बहुत अच्छे से मारना. हैव अ गुड नाइट स्लीप, प्रोबेबली इंजॉय करना है, ऐसा गया. ठीक है, दैट्स इट. या आई गेस आई विल पास दिस टू समवन एल्स. हाँ सब. यस. Relax. All good so far? Yes, everyone attending online, are we good so far? अब तो कुछ पता नहीं का रह गया. देखो, जो DILR के बारे में बताना था, अभी तक हमने 50, 60, 70 सेशन में जितना करना था वो सब कर लिया, इंक्लूडिंग द वर्कशॉप्स एंड एवरीथिंग. करेक्ट. 2-3 पॉइंट्स मैं बताऊंगा कि वॉट एवर योर स्लॉट इज, लेट इट बी फर्स्ट, लेट इट बी सेकेंड, लेट इट बी थर्ड, सैटरडे को क्या करना है. जो भी आपका 2 घंटे का स्लॉट रहेगा, हमने पहले से बोला है कि फ्राइडे को मॉक टेस्ट दो, सैटरडे को कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देगा, राइट. लेकिन सैटरडे को जो भी आपका टाइम स्लॉट रहेगा, लेट इट बी थर्ड एज वेल, क्योंकि सैटरडे इवनिंग सबका बहुत ही ज़्यादा लिथार्जिक होता है. करेक्ट, लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट. करेक्ट, लेकिन संडे इवनिंग तो उससे भी ज़्यादा लिथार्जिक रहेगा, राइट. और संडे मॉर्निंग भी. तो सैटरडे को आपको क्या करना है, आपके टाइम स्लॉट पे जितना हो सके उतना रिवीजन कर लो, क्योंकि आपका माइंड उसी टाइम पे एक्टिवेटेड रहेगा. जितना ज़्यादा एफिशिएंसी हो सकता है उतने ज़्यादा एफिशिएंसी पे इसकी कोशिश करना है. करेक्ट. आप तो अपने टाइम स्लॉट पे मॉक टेस्ट देते ही आ रहे हो, लेकिन सैटरडे को मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो वो टाइम स्लॉट खाली मत जाने देना बस. क्लियर. एंड एक चीज़ लास्ट पॉइंट मैं बोलता हूँ छोटा सा, कि यू हैव ट्राइड अ लॉट. पहले मॉक में कभी कभी फेलियर आ चुका होगा, दूसरे मॉक में सक्सेस आ चुका होगा. तो लेटेस्ट जो मॉक रहेगा उसमें जो भी सक्सेस आया रहेगा, अगर एक्चुअल कैट के दिन में उसमें फेलियर भी आया तो लेटेस्ट मॉक से अगर मैं ग्राफ निकालूँ तो उससे वो ऊपर होना चाहिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट.
कि अगर लेटेस्ट मॉक में आपका, अगर आपने एक्सपेक्ट किया था 50 मार्क्स लेकिन आपको फेलियर आ चुका है 45 मार्क्स पे, तो एक्चुअल कैट मॉक में आपका जो फेलियर भी रहेगा वो 45 से ऊपर होना चाहिए। करेक्ट? दिस प्रूव्स कि यू हैव इनफ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया हुआ है, इसीलिए आप खुद से एक्सपेक्ट कर रहे हो। करेक्ट? नहीं तो 3.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, उसमें से 2.5 लाख लोग खुद से एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे। करेक्ट? तो आप बचे हुए 80,000 में से हो, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। कितना ऊपर जाते हो वो आपका लास्ट डे का परफॉर्मेंस डिसाइड करेगा। क्लियर? चलो, ऑल द बेस्ट। चलो ना, ऑल द गुड कॉप्स आर गॉन। सबसे इम्पोर्टेंट, स्नैप का कल लास्ट डेट है। हाँ, है ना, स्नैप का लास्ट डेट है। मेक श्योर दैट यू फिल द फॉर्म, है ना। इफ़ यू आर थिंकिंग कि स्नैप की फीस बहुत ज़्यादा है, सिलेक्ट नहीं हुए तो 20 लाख बच जाएगा ना, है कि नहीं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, देर आर मल्टीपल कॉलेजेस जिसका लास्ट डेट है आज, IMT का लास्ट डेट है, एंड मल्टीपल कॉलेजेस का लास्ट डेट है 22 नवंबर। आपको लिस्ट पता है, ठीक है। कमिंग टू योर कैट प्रिपरेशन, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एडमिट कार्ड से रिलेटेड मुझे बहुत सारे डाउट्स आए थे। सो यू कैन टेक अ कलर्ड एडमिट कार्ड और ब्लैक एंड वाइट एडमिट कार्ड, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अबाउट दी कामनेस, ठीक है। तो अभी येस्टरडे वी हैड अ सेशन विद सुशांत, ठीक है। सुशांत वॉज अ स्टूडेंट 2 years अगो, तो उसका कैट का एग्ज़ाम थोड़ा सा ख़राब हो गया था। 1 week लेटर ही हैड हिज IFT का एग्ज़ाम। IFT का अभी एग्ज़ाम होता नहीं है, बट 1 week लेटर ही हैड हिज IFT का एग्ज़ाम। हिज सेंटर वॉज 35 kilometers अवे। ही वॉज नॉट विलिंग टू गो टू राइट दी एग्ज़ाम, है ना, ऐसा ही कुछ तो था, कल बोला था वो। सो ही जस्ट वेंट देयर, कि उसके मम्मी पापा ने उसको बोला कि यार चलो पैसे भरा है तो चले जा, है ना। सो ही जस्ट वेंट देयर, मेड श्योर कि भाई पूरा रिलैक्स जाए, एंड नाउ राइट नाउ ही इज स्टडिंग इन IFT कोलकाता, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है कि आप मेंटली कितने काम रहते हो, ये वहाँ पे उस दिन डिसाइड होगा। आप मतलब सेंटर पे जाके फॉर्मूला शीट पढ़ रहे हो, सेंटर पे जाके इधर उधर डिस्कस कर रहे हो, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। एज राइटली सेड बाय ऑल ऑफ दीज, 8-10 महीने से प्रिपेयर कर रहे हो, आखिरी 2 मिनट से, आखिरी 8 मिनट से 10 मिनट से कुछ नहीं होने वाला है। सो रिलैक्स, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यू शुड नॉट लेट वन सेक्शन अफेक्ट द अदर सेक्शन, ठीक है। जैसे अपना कभी किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ अपना झगड़ा हो गया, तो अपने मम्मी को नहीं पता चलता ना, नहीं पता चलता ना, क्यों रोहित, पता चलता है क्या, नहीं ना। तो सिमिलरली कल उस दिन VARC के साथ झगड़ा हो गया तो DILR को पता नहीं चलना चाहिए, है ना। DILR को के साथ झगड़ा हो गया तो कौन को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। एज टोल्ड बाय जय सर, 39 मिनट्स का ही सेक्शन आप समझ के चलो। 1 मिनट रिलैक्स करने को लगता है तो लगेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट में वैसे भी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला था, एंड वो 1 मिनट में इफ़ यू रिलैक्स तो वो नेक्स्ट सेक्शन में आप मेंटली स्टेबल होके जाओगे, ठीक है। रिसेंट कैट मॉक्स में जो आपका स्कोर है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन द एक्चुअल एग्जाम, ठीक है। वैसे तो 10 मैच जीते थे और फाइनल हार गए थे 19 नवंबर को पिछले साल, है कि नहीं, है ना। और वही लास्ट T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली पूरा खराब खेला और फाइनल में 76 रन स्कोर किया, है ना। बोथ द एग्जाम्पल्स वी हैव रिसेंट एग्जाम्पल्स। सो उस दिन आप कैसे परफॉर्म करते हो वो मैटर करेगा। जस्ट मेक श्योर, जैसे आदित्य सर ने बोला कि योर बैंड शुड बी बेटर देन योर लास्ट मॉक, है ना। अगर वो आप सिक्योर करते हो, डोंट चेंज योर स्ट्रेटेजी अ लॉट। मॉर्निंग स्लॉट के स्टूडेंट्स के लिए तो सिंपल है कि यार टाइम पे उठ जाओ, टाइम पे पहुंच जाओ। सेकंड स्लॉट मेरे हिसाब से बेस्ट स्लॉट है। थर्ड स्लॉट के स्टूडेंट्स को एक सिंपल रिक्वेस्ट है, डोंट वॉच अ लॉट ऑफ एनालिसिस वीडियोस, ठीक है। हम लोग भी डालेंगे बाय 11 AM आई विल बी पोस्टिंग स्लॉट 1 का एनालिसिस वीडियो, बाय 2 PM और 3 PM आदित्य सर विल बी पोस्टिंग स्लॉट 2 का एनालिसिस वीडियो। उतना देखो, 1-2 और इंस्टीट्यूट का देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ गोइंग टू बी रिपीटेटिव, है ना। कोई इंस्टीट्यूट ये बोलेगा वो बोलेगा, ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। स्लॉट 3 के स्टूडेंट्स को मेजॉरिटी इशू इसके होता है कि दे टेंड टू चेंज देयर स्ट्रेटेजी एट द लास्ट मोमेंट, है ना। तो वो नहीं होना चाहिए स्लॉट 3 वाले। बस ये एक चीज़ ध्यान में रखो कि यू वॉच 1 or 2 एनालिसिस वीडियोज़ एंड दैट्स इट, ठीक है। बाकी इफ़ यू आर थिंकिंग कि यार मेरा सेक्शन आते तक मेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो हो जाता है, उस दिन इतनी फटी पड़ी रहेगी कि कॉन्सेंट्रेशन पूरे 2 घंटे तक मैक्सिमम ही रहेगा, ठीक है। तो ये होगा ही नहीं कि यार, मतलब इट इज़ हैपनिंग विथ यू, क्योंकि
20-25-30 मॉक्स दे दिए हैं, वो कंसंट्रेशन लेवल जो आपका मॉक में है उससे कई ज़्यादा कंसंट्रेशन लेवल आपका एक्चुअल कैट में रहने वाला है. सो मेक श्योर दैट यू गो विद द बेस्ट फ्रेम ऑफ माइंड, है ना. रिलैक्स करो जैसे आप रिलैक्स कर सकते हो, म्यूजिक सुन के, सो के, जैसे जो आपका एग्जाम स्लॉट है उस टाइम पे आपको पढ़ाई करना है. एंड मेक श्योर दैट यू गिव योर बेस्ट. ठीक है, यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, you have given your 100%, you will, I mean, if you perform well in that exam, life will be better after that. ठीक है, चलो. और भी अगर कोई डाउट है, you can always connect with us, we are always available on phone calls, है ना. सैटरडे को बहुत रोना आ रहा है तो मुझे कॉल कर सकते हो, आई विल बी अवेलेबल एंड वी कैन डिस्कस. अगर आपको इफ़ आई एम एबल टू काम यू वेल तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एंजॉय. अगर मैं किसी को काम कर सकता था तो सदगुरु होता था, है ना. बट आई एम अ मैथ्स फैकल्टी, है ना. ठीक है, हाउ टू बी पेशेंट वी कैन नॉट टीच यू, यू हैव टू बी पेशेंट. हाउ टू बी पेशेंट यू हैव टू डिसाइड, एंड हाउ टू बी काम, हाउ टू बी नॉट एंशियस यू हैव टू डिसाइड. ये कैसे करना है वो आपका तरीका रहेगा. कोई म्यूजिक से करेगा, कोई क्रिकेट खेल के करेगा. जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट एग्जॉस्ट योरसेल्फ वन डे बिफोर. ठीक है, चलो, वी आर गुड टू गो.